السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ٹی وی نیوز کا خبرنامہ۔ تفصیلی خبروں سے قبل ناظرین آئیے سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ وزیر کے ٹی آر نے کہا، چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی خواہش ہے کہ ریاست میں غریب 2 بیڈ روم والے مکانات میں عزت کے ساتھ رہیں۔ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران جان کی قربانی دینے والے کسانوں کے ارکان خاندان کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے امداد کیوں نہیں ملی؟ وائس شرمیلا کا سوال۔ مہیلا بندھو اجلاس کے افتتاحی سیشن سے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا خطاب۔ کہا، قیام تلنگانہ کے بعد سے کے سی آر کی قیادت والی تلنگانہ حکومت خواتین کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ راجستھان ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرپرسن گوپال کرشن بیاس کی حیدرآباد آمد۔ تلنگانہ ہیومن رائٹس کے ذمہ داروں نے کی ملاقات۔ آئی ٹی، صنعت اور تجارت کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی خواہش ہے کہ ریاست میں غریب لوگ 2 بیڈ روم والے مکانات میں عزت کے ساتھ رہیں۔ ہفتے کو وزیر نے یلاریڈی پیٹ منڈل کے مضافاتی گاؤں میں وینکٹاپور میں تقریباً 2 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر کیے گئے 40 2 بیڈ روم والے مکانات کا افتتاح کیا اور استفادہ کنندگان کے ساتھ ایک ہاؤس وارمنگ تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے بے گھر غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی ایک پرجوش اسکیم شروع کی ہے، جیسا کہ ملک میں کہیں اور نہیں ہے۔ کالونی میں تمام سہولیات فراہم کی گئی۔ انہوں نے مستحقین کو اسے صاف رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر موصوف نے کہا، تلنگانہ ریاست فیلڈ سطح پر فلاحی اسکیمات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرتے ہوئے ملک کے لیے ایک مینارہ بن گیا ہے۔ 18,000 کروڑ روپئے سے 2 لاکھ سے زائد مکانات کی تعمیر شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وینکٹاپور گاؤں میں تعمیر کیے گئے مکانات کو شفاف طریقے سے 40 لوگوں کے حوالے کیا گیا اور مستحقین کو پٹے بھی دیے گئے ہیں۔ گلوان میں چینی فوجیوں سے ہوئے تصادم میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے ارکان خاندان کو تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کی گئی مالی مدد پر وائس شرمیلا وائس آر تلنگانہ پارٹی کی سربراہ نے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران جان کی قربانی دینے والے کسانوں کے ارکان خاندان کو حکمران جماعت TRS کی جانب سے کیوں مدد نہیں کی گئی ہے۔ سارے عالم میں عورت کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے، کیونکہ عورت اپنی زندگی میں بیٹی، بہن، بیوی اور ماں جیسے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نکلس روڈ پر واقع پیپل پلازا میں منعقدہ مہیلا بندھو اجلاس کے افتتاحی سیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ہے۔ رکن اسمبلی دانم ناگیندر نے یوم عالم خواتین کے موقع پر 3 روزہ تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ نے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عورتیں گھروں کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ملازمت بھی کرتی ہیں، جس سے وہ دوہری ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عورت کسی بھی گھر کو جنت نما بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہمیں عورتوں کی عزت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ آگے کہا کہ دور حاضر میں عورتیں ہر شعبہ جات میں اپنی قابلیتوں کے جوہر دکھاتی ہوئی ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں۔ محمد محمود علی نے کہا کہ قیام تلنگانہ کے بعد سے کے سی آر کی قیادت والی تلنگانہ حکومت خواتین کو خاص اہمیت دے رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے لڑکیوں اور خواتین کے لیے ریزیڈنشل اسکول اور کالجز، شادی مبارک اسکیم، کے سی آر کٹ، محکمہ پولیس میں پہلی مرتبہ 33% ریزرویشن، GHMC انتخابات میں 50% ریزرویشن، میئر اور ڈپٹی میئر عہدوں کے علاوہ بیٹری ورکرز، بیواؤں کو ماہانہ وظیفے فراہم کر رہی ہے۔ ہوا بھی نہیں، روشنی بھی نہیں، ہوا بھی نہیں، ماں کا نعم البدل خدا بھی نہیں، تو یہ جتنے ہماری بیٹیاں ہیں یہ کل ماں بننے والی ہے۔ خدا سے بھی زیادہ ہے آپ کا درجہ ہے۔ آپ اپنے اولاد کو پڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، آج چھوٹے کل بڑے ہوتے ہیں۔ جیسا ارشد صاحب نے کہا، عورت بہت سیکریفائز کرتی ہے، اس کے طرح سیکریفائز کرنے والی کوئی نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کے لیے رات رات جگتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھا کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت کرتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ جاب بھی کرتی ہے۔
मैं आज ही बताया हमारे पुलिस ऑफिसर को मीटिंग के अंदर, मैं बोला इन पर डबल जिम्मेदारी होती है, सर्विस भी कर रहा है, घर की सर्विस भी दे रहा है, इसलिए औरतों की बड़ी अहमियत है। और हमारा हिंदुस्तान कल्चर के अंदर हम अपनी बहनों की, अपनी माओं की बहुत इज्जत करते हैं। हमें हमारा फर्ज बनता है कि हमारे लेडीज को जब हम देखते हैं तो रास्ते में रुकना चाहिए, फर्स्ट उन्हें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है। इसलिए सीएम साहब का बर्थडे हम लोग ने 3 दिन मनाया और आज हमारा वुमेन्स डे भी हम 3 दिन मना रहे हैं, ताकि इसमें अवेयरनेस बिल्डअप किया जाए, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को बताया जाए कि आपका क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे स्टेट के अंदर। हमारे सीएम साहब अभी जब भी सोचते हैं तो हमारी महिला बहनों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहते हैं जो भी स्कीम लाई जाए फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आज का वुमेन्स डे का 3 दिन का प्रोग्राम है, क्योंकि परसों है सर दिन पर आज से शुरू किया गया। इसके लिए मैं नागेंद्र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे डायनामिक एक्स मिनिस्टर है, और आप तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। याकुतपुरा के बद्री डिवीज़न तालाब चिंचाला में वाक़ शाहजहां फंक्शन हॉल में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उसका मायना किया। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात उन्होंने मीडिया से बताई हैं। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बद्री डिवीज़न तालाब चिंचाला में आज शाहजहां फंक्शन हॉल में मेडिकल कैंप कायम किया गया, फ्री मेडिकल कैंप। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर कि सनम इलाकों में और गरीब आबादियों में ये कैंप कायम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़माने में बीमारी भी बहुत महंगी हो गई और खुसूसन दवाएं हैं, दवाओं की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही। गरीब के पास उतनी क़ुव्वत खरीद बाकी नहीं है। वाइट राशन कार्ड होल्डर को थोड़े बहुत फैसिलिटीज़ हुकूमत की तरफ से हैं, उनको इलाज के लिए, दवाओं के लिए कुछ सहूलत फराहम की जाती है। चुनांचे सरकारी दवाखाने तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों में जिसके पास इंसानी हमदर्दी है, जज्बा है लोगों की खिदमत करने का, इस तरीके से यहाँ फ्री मेडिकल कैंप मक्का हॉस्पिटल शाहीन नगर की तरफ से कायम किया गया है। हमारे डॉक्टर शोएब साहब उसके निगरानकार हैं, उनके हाथ के यहाँ बेशुमार वर्कर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो चेकअप कर रहे हैं। जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आँख के ऑपरेशन की, उनको फ्री ऑपरेशन वो दवाखाने में कराएंगे, और जिसको बीनाई कमज़ोर है उनको चेक करके ऐनक भी देंगे, उनका भी इलाज करेंगे। बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, दवाखाने के ज़िम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे कैंप की ज़रूरत है। राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन गोपाल कृष्ण व्यास अपने अफराद ख़ानदान के साथ हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया, मेंबर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन व दीगर ने दिलकुशा गेस्ट हाउस में जस्टिस जी के व्यास से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान जस्टिस व्यास ने तेलंगाना ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मेदारों को राजस्थान दावत दी है और तेलंगाना रियासत में हो रही तरक्याती कामों की सताइश भी की। भैंसा निर्मल कौमी शाहराह 61 पर आरटीसी बस डिपो भैंसा के करीब लारी और मोटरसाइकिल के दरमियान दिलखराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक 10वीं जमात का तालिब इल्म ई गणेश वल्द भूमेश मुतवत्तिन कोहीर 15 साला मौके पर हलाक हो गया है, जबकि 2 दोस्त वाई बालैया श्रीनिवास 15 साला मुतवत्तिन राहुल नगर भैंसा और जी अक्षत 16 साला मुतवत्तिन कोहीर शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद हालत को देखते हुए इलाज के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जामिया रियाजुस सालिहात में आज तालिबात में जलसे तक़सीम असनाद की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जमात इस्लामी अमीर तेलंगाना उड़ीसा मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान व दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की और इस जलसे से मुखातब किया। आज जामिया रियाजुस सालिहात का सालाना जलसा और तक़सीम असनाद का जलसा था, और जो फारिग लड़कियां
जिन्होंने हिफ्ज़ कंप्लीट किया, आलमियत और फजीलत को मुकम्मल किया, उनको असनाद से आज नवाजा गया। आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद जहांगीर साहब थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और यहाँ से फ़ारिग लड़कियाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और मानो और दीगर यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएशन भी करती हैं और बहुत सी लड़कियां इसके अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। सिर्फ उर्दू के अंदर ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं लड़कियां। तो इस तरह एक तरफ दीनी उलूम और दरस निज़ामी और फिर दूसरी जानिब जो जदीद उलूम है उससे भी ये फ़ायदा उठा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के अंदर इन लड़कियों को दस्तरस हासिल है। और इस मौके पर मैं तमाम ज़िम्मेदारान इदारा को मुबारकबाद देता हूँ और कामयाब लड़कियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। दो बदो अस्तबाजी प्रोग्राम मिलन इंटेलेक्चुअल्स प्रोग्राम वरंगल के ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द किया गया। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी और शाहिद मसूद साबिक़ म्युनिसिपल एडिशनल कमिश्नर वरंगल ने दुल्हा और दुल्हन के बहुत से ख़ानदानों ने प्रोग्राम में शिरकत की और 180 से ज़ायद अफराद के साथ प्रोफाइल्स का तबादला किया। आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। वज़ीर KTR ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ख्वाहिश है कि रियासत में गरीब 2 बेडरूम वाले मकानात में इज्जत के साथ रहें। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले किसानों के अरकान ख़ानदान को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इमदाद क्यों नहीं मिली, वाइस शर्मिला का सवाल। महिला बंधु इजलास के इफ्तिताई सेशन से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। कहा, क़याम तेलंगाना के बाद से KCR की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को ख़ास अहमियत दे रही है। राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन गोपाल कृष्ण व्यास की हैदराबाद आमद। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स के ज़िम्मेदारों ने की मुलाकात। सुर्खियों के बाद नाज़रीन इजाज़त दें। Z चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, इसी तरह फेसबुक पर लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़। और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी
रॉयल बैतल मंदी। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैतल मंदी, रॉयल बैतल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैतल मंदी, रॉयल बैतल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।